Students and friends, I got the syllabus and I know that the topics are not very tough, but yes, you need to study in details and time is so short. I am also preparing for my exam. Others I could help you, means daily I could take 2 to 3 class, or I could guide you efficiently, but right now I am also helpless. I am also preparing and this exam is very important for me. Okay, so but I can guide you and I can say what to read and what to not, which book you should, and I also have some notes. Okay, I have some books which I use in my examination, in ICAR examination and BHU PET, etc. So I think I have those textbooks. I can share my PDF with you in my free time. I will try to share PDF of my book. Okay, I'll click photo and send the PDF which materials I have. But आज जो है I want to start from beginning. What is food? You should have clear concept about all the topics which are going to ask in your examination. So first of all, what is food? Food you all know, but food is anything solid liquid which when digested, assimilated, it gives us energy. So food is consist of nutrients, you all know. Nutrients, there are two types of nutrients, macro and micronutrients. Okay, you all know micronutrients means carbohydrates, proteins, fats. Again, in micronutrients there are what? There are vitamins, minerals which are which are required in small quantities by our body. Okay, now we have the definition of food. Now let's come what is nutrition. What is food science and nutrition? So basically this is a discipline where we study about foods, then how the food means different reactions which are occurring in our body when we digest food, when we use food. So mainly it's all about food and our body, the interaction between the food and our body. So, okay, how the digested nutrients affect our body, what are the composition of food, etc. All are related to nutrients, food and our body. So but you should have a clear definition from the book. You should remember it. Okay, now I am going to say that functions of food, you all know, main it have different functions, but there are main three functions. एनर्जी यील्डिंग फंक्शन, सो आपको पता ही होगा कार्बोहाइड्रेट जो है, ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन 4 कैलोरी देते हैं, मतलब 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 किलो कैलोरी देते हैं. और ये एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं हमको, वो एनर्जी हम किस में यूज करते हैं? हम चलने में, राइटिंग में, इवन हम जब सोते रहते हैं तब भी हमको एनर्जी की जरूरत होती है. बिकॉज हमारे बॉडी में ये होता है, आपको पता है, आप लोग सुनेंगे बेजल मेटाबॉलिक रेट. जब हम सोते रहते हैं, हमारे हार्ट, हमारे किडनी, ये सब फंक्शन होते हैं ना, जो भी होते हैं सोते टाइम पे, तो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सब कैसे होता है? एनर्जी ना. तो मेनली जो एनर्जी होती है वो तो फूड से ही आते हैं. अल्टीमेट सोर्स तो फूड है ना. फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे इकोसिस्टम से मिलते हैं. मीन्स अल्टीमेटली सन से मिलता है. सन इज द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग और यील्डिंग फंक्शन. सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग. ऑफ कोर्स जो प्रोटीन हमको मिलते हैं फूड से, दैट प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर मसल्स, बिल्डिंग आवर बॉडी, आवर ग्रोथ. सो हमारे जो ग्रोथ है, सो प्रोटीन इन्फ्लुएंसेस आवर ग्रोथ. प्रोटीन, विदाउट प्रोटीन, क्योंकि अगर हमको सटीक राइट टाइम पे अगर हम प्रोटीन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे स्टंटेड होते हैं, वो लोग ग्रोथ नहीं होता प्रॉपर. क्यों? बिकॉज उस टाइम पे जो क्रूशियल टाइम था, उस टाइम पे उन लोगों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिला होगा, जिसके वजह से उनका ग्रोथ रुक गया है. तो प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, बॉडी बिल्डिंग, इवन रिपेयर के लिए. बॉडी में कोई वॉन्ड हो जाता है, घाव लग जाते हैं, उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन इज नेसेसरी. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन. नो, हमारे जो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स है, ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं. विटामिन, मिनरल, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन में विटामिन काम आते हैं. ठीक है, थियामिन को एपेटाइट विटामिन बोलते हैं. विटामिन सी जो है हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, मेंटेन में भी हेल्प करते हैं, टूथ के लिए, गम के लिए, ये सब इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
तो ये मेंटेनेंस का काम होता है, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस, दीज आर थ्री इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो ओवरऑल वो जो फूड है हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। फिर जो फूड ग्रुप्स है क्या है कि ICM इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो उन लोगों ने सजेस्ट किया है फूड ग्रुप्स, जो फूड को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जब हम डेली हम फूड खाते हैं ना, उसको कुछ ग्रुप बना दिया है, जैसे कि वेजिटेबल और सब्जी जो है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, फैट्स एंड ऑयल को, सीरियल्स को एंड मिलेट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, फिर पल्सेस को, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ही उन लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बनाया, फूड ग्रुप्स, 4 फूड ग्रुप सिस्टम है, 5 फूड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट फूड ग्रुप्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं फूड ग्रुप्स। तो ये हम अभी नहीं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी हम बस ऊपर से बोल रहे हैं। फूड पिरामिड, अगेन फूड पिरामिड क्या होता है कि ICMR ने जो फूड पिरामिड आपको पता है ट्रायंगुलर शेप होता है, नीचे से ऊपर तक उसमें कम होता जाता है क्वांटिटी। तो फूड पिरामिड भी वैसा ही है, उसमें दिखाया जाता है कौन से वाले फूड हमको बहुत ज्यादा लेने चाहिए, फिर नेक्स्ट कौन से वाले फूड उससे कम लेना चाहिए, फिर नेक्स्ट मतलब ऐसे पिरामिड में फूड को अरेंज कर दिया, जैसे कि वेजिटेबल्स को ज्यादा लेना चाहिए, आपके फैट को कम लेना चाहिए, शुगर और उसको और कम लेना चाहिए। तो ऐसे ही पिरामिड में डिवाइड कर दिया, वही है आपका फूड पिरामिड, उसको भी हम पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुकिंग मेथड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बिकॉज कुकिंग मेथड जो है हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपके ब्लंचिंग हो, उसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए आपको। प्रिलिमिनरी जो होते वो तो पता ही है, बट जो आपके कुकिंग मेथड्स है मैं बोल रही हूँ, वो सब आपको कंसेप्ट क्लियर होना। जैसे व्हाट इज ब्लंचिंग, आप लोगों को पता है ब्लंचिंग क्या है? जब फूड होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनको हम मेनली वेजिटेबल को क्या कहते हैं, हम ब्लंच करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल है, ठीक है, एप्पल को जब हम काटते हैं, रख देते हैं ऐसे ही, तो क्या होता है उसमें एक ब्राउनिंग हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जिसके वजह से अगर हम उसको काट देते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, उसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ओके, तो एंजाइम के वजह से कुछ रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसके लिए वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, उसको हम ब्लंच करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ताकि वो रिएक्शन ना हो। समझ में आ रहा है? तो जो रिएक्शन ना हो उसके लिए हम करते हैं ब्लंचिंग। मेनली वेजिटेबल्स में ये सब किया जाता है, फ्रूट्स में भी किया जाता है ब्लंचिंग, ठीक है। इसमें क्या करता है कि हम फूड्स को, वेजिटेबल्स को बॉइलिंग, लिक्विड बॉइलिंग में हम मतलब बॉइल करते हैं हम, और एंजाइम जो है उसको ही हम किल कर देते हैं। जब एंजाइम ही नहीं रहेगा तो कैसे रिएक्शन होगा? तो ऐसे ही कुछ बात है। तो उसमें हम एंजाइम को मेनली डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लंचिंग करते, याद रहेगा। तो ब्लंचिंग जैसे पोटैटो, टोमेटो, इन सब में किया जाता है, कैरोट्स में भी किया जाता है, ठीक है। फिर डेफिनेशन ब्लंचिंग इम्पोर्टेंट है। स्प्राउटिंग तो आपको पता ही है, फर्मेंटेशन तो पता ही है। जो फर्मेंटेशन में क्या होता है, जैसे आपका दही है, इडली है, डोसा, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, उसके ऊपर बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, ये सब क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर को तोड़ के स्मॉल स्मॉल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर, जैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेनली जो बैक्टीरिया है ये सब करते हैं, जैसे दूध में एक लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो उसको दही में कन्वर्ट करता है, उसका जो लैक्टोज है उस पर एक्ट करता है ना, तो शुगर को के ऊपर रिएक्शन करता है मेनली। सो ये फर्मेंटेशन है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्मेंटेशन क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, व्हाट इज दही, योगर्ट, ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, इडली, डोसा, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेज है, तो क्या ना, फर्मेंटेशन जब होता है ना, तो विटामिन सी लेवल बहुत बढ़ जाता है किसी भी फूड में। तो फर्मेंटेशन का एक बेनिफिट है कि विटामिन का जो लेवल है उसका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है वो भी मैं बताती हूँ। बायो अवेलेबिलिटी वो है कि जब हम कोई खाते हैं एनी फूड, व्हेन वी एसिमिलेट द फूड, our body can't digest, can't use the whole of nutrients. For example, when we have a egg, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी गेट दैट 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बट आवर बॉडी कैंट यूज द 3 ग्राम. आवर body can use 50% or something, means, but egg is a complete protein. Our body used it mostly, 90% of it get absorbed, but still we can't absorb the whole protein. So bioavailability means how much protein our body is able to absorb, like that. Okay. If in any food bioavailability is more, means our body can absorb more quantities of that nutrients. Okay, for example, milk protein, egg protein, their bioavailability is very high, very high. Means our body can absorb most of the proteins we eat. Then what is grinding, drying, filtration, roasting? Roasting we all know, grinding, these are general term. What is simmering? Difference between poaching and simmering. Simmering means boiling, matlab we boil the food, but the temperature should be 82 to 99 degrees centigrade. Okay. In a pan we boil that. The pan should be well fitted, should have well fitted lid. Okay. In simmering, food are cooked in a pan with well fitted lid at temperature below the boiling point, not at the boiling point, not above the boiling point, but boiling below the boiling point, 82 to 99 degrees centigrade. This is important. What is poaching? The temperature 80 to 85% temperature in poaching. Okay. Stewing, what is steaming? Different types of steaming are there. For example, wet steaming, dry, waterless cooking are also there. That is pressure cooking is also important. Baking, okay, in cake also we apply the baking, na? So we all know what is baking. This is important, but you need to study clearly, more precisely. Again, have you heard the term pasteurization? Pasteurization, ultra high temperature treatment, etc. So pasteurization is very important, and because it is performed in milk to make it free from bacteria, harmful bacteria. Pasteurization, there are different classes of pasteurization. Okay, so I will tell slowly, because I have no time. I will see what I can taught, but I have these notes. I don't know how to share these notes. I have books. I can provide only the PDF of my book. Okay, of the important chapters. Okay, for today it's enough. Next, I think I will say something about cereals, cereal product, nutritive value of cereals, and nutritive value of pulses. So please do share and subscribe. Thank you.